So Green's functions given by English mathematician George Green. So they are applicable to solve non-homogeneous equations. So let us consider, and non-homogeneous को वैसे inhomogeneous भी बोलते हैं. Inhomogeneous equation of the form so where with certain continuity conditions that f is continuous in given domain. तो जो ग्रीन फंक्शन का आइडिया है, so we might expect a solution of the form ux, जो भी आपका डोमेन होगा, सर्टेन डोमेन में सॉल्व करेंगे. जी एक मैं लिख रहा हूँ फंक्शन जी एक्स एक्साई एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, यानी कि आपने वाई निकालना है तो क्या करो, आप सर्टेन इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो इंटीग्रल करने के साथ एक फंक्शन एफ के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई किया है. दिस फंक्शन, इसको ग्रीन फंक्शन बोलते हैं. इफ सच ए रिप्रेजेंटेशन exists, सो कर्नल भी बोलते हैं, द कर्नल ऑफ दिस इंटीग्रल ऑपरेटर g is called Green's function. जैसे आप करते थे ऑपरेटर मेथड लगाते थे ना, इसको सॉल्व कैसे करते थे आप, y इक्वल टू नॉन होमोजीनियस को, तो आप ऑपरेटर को रिवर्स में ले जाके नहीं करते थे, इंटीग्रल 1/l समथिंग, देन यू परफॉर्म, मतलब 1/d का मीनिंग क्या था, इंटीग्रेशन. तो अगर आपको g मिल जाए, देन by writing this g and integrating you can get solution of non homogeneous equation. तो हमने बेसिकली जो पढ़ना है, हम वी आर स्टडिंग ग्रीन्स फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर ओडी. तो मैं नोटेशन हम वो यूज करूंगा. सो वी कंसीडर एल ऑफ वाई एक्स, जनरल लिख लेते हैं. ठीक है, और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, यू कैन कन्वर्ट एनी सेकंड ऑर्डर ओडी इनटू स्टर्म लिवाल फॉर्म, क्यू एक्स वाई डैश प्लस आर एक्स वाई is equal to f of x, where p, q, r are continuous functions on interval ab. So we are solving boundary value problem. So you have a domain a to b. ठीक है, and of course p is non-zero. क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो p non-zero होगा. Also we assume that f is bounded. Bounded on AB.
So we now define Green's function. So Green's functions, they are helpful to solve. So they are, of course, they are function, and they are helpful to solve a certain kind of differential equations. And even in PD in next semester, you will study they are helpful to solve certain type of partial differential equations as well. So firstly, I'll define the green function, then we will construct that how you construct green function, and then we study their properties. And you might have seen these functions in any another area as well, maybe some electrical engineering or somewhere else. So we now define Green's function g x, ये नोटेशन अगजाई है, कई बुक्स इसको एस लिखती हैं, मैं अगजाई लिख रहा हूँ. सो Green's function of operator L to be the unique solution to the problem with homogeneous boundary conditions. G A xi equal to G B xi, this is equal to 0. So एक मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया दैट डेल्टा, दैट इज नोन एज डिराक मास और डेल्टा फंक्शन. क्या वैल्यू होती है इसकी? व्हेन एक्स इक्वल टू जाई, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये 0 है, और सर्टेन एक पॉइंट पे है उसकी वैल्यू है, एक सर्टेन जंप है. सो व्हेन एक्स इक्वल टू xi, this impulse occur at x equal to xi, and all other points. So you have equation, homogeneous equation type का ही है, Lg equal to 0 for other points, but at x equal to xi you have non-zero value. So वैसे इसका डेल्टा का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, दैट इज वेल डिफाइंड 1/epsilon रूट पाई e पावर माइनस एक्स स्क्र बाई एप्सिलॉन स्क्र. e पावर माइनस एक्स स्क्र, इसका जो ग्राफ होता है, तो क्वेश्चन करा है, ठीक है. सो व्हेन एप्सिलॉन इज 0, सो दिस विल बी कंसंट्रेटेड अबाउट, सो बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, और ये अगर एप्सिलॉन 0 को जो अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. सो सडन जंप है एक पॉइंट पे, ठीक है. When एप्सिलॉन goes to 0, so this is taken as approximation. So this Gaussian curve is taken as approximation of delta function in differential equation. And क्योंकि इन्फिनिटी हम सीधा नहीं ले सकते, so you take some approximation. Of course, when epsilon goes to 0, this will goes to infinity. So you have a non-homogeneous equation, that is you can put a label. So this is equation first, and then you have a equation 2 with homogeneous boundary condition. So A पे vanish है, B पे vanish है. So the importance of Green's functions comes from the fact that for given solution g xi
of 2, we can find solution of first. यानी कि अगर आपने होमोजीनियस सॉल्व कर लिया, then immediately you can write the solution of first for any function x. We can find solution of first for any arbitrary function, for any arbitrary function fx by writing, मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया था शुरू में, by taking y x equal to a to b g x of xi f of xi d xi. This is equation number 3. तो ये हो कैसे रहा है? सो हमारे पास इक्वेशन थी L of yx, ठीक है, तो मैं y को फिट कर रहा हूं, सो L y क्या है, g ऑफ, मतलब 3 सोल्यूशन कब होगा? जब ये सेटिस्फाई करेगा, तो L y x क्या आना चाहिए, f x आना चाहिए, तभी सोल्यूशन होगा ये. We are checking that in fact it is a solution of non-homogeneous equation. ठीक है जी. डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप इनसाइड भी ऑपरेट कर सकते हो, जहाँ पे एक g दिखेगा इसको, जिसके अंदर x है, एंड f of xi d xi. So you can separate this term. Sorry, this. So L differential operator will act, you can push derivative inside the integral. अब LG मैंने लिखा है जो सेकंड से, इसकी वैल्यू है डेल्टा फंक्शन की टर्म में. सो f of xi d xi. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी फंक्शन एनालिसिस का. वैसे आपने इस टाइप का इंटीग्रल कभी नहीं पढ़ा. अब ये देखिए, x अगर नॉट इक्वल टू xi है तो ये जीरो रहेगा डेल्टा फंक्शन. ये नॉन जीरो किस पे होगा? सिर्फ x इक्वल टू xi पे. तो इस जो इंटीग्रल की वैल्यू है दैट इज f of x. ये डायरेक्ट नहीं है, इसका प्रूफ है that requires some knowledge of functional analysis. This is not a usual integration. अगर डेल्टा फंक्शन किसी फंक्शन के साथ आ रहा है, जिस पॉइंट पे डेल्टा नॉन जीरो होगा वो पॉइंट फंक्शन के अंदर डाल दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल f of x. So L of y equal to fx. So this means that this is a solution. This means yx is a solution of non-homogeneous equation first. Also you can check from this integral what will be y if from integral 3 you can check. We also note that this y satisfy homogeneous boundary conditions. So one important point is that G depends only on equation or differential operator, but not on fx.
So if so in other words you can say, if you know Green's function, you can write the solution of non-homogeneous equation for any f. तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि किसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन. और आगे हम देखेंगे कि जो हमने आइगन फंक्शन एक्सपेंशन पढ़ा है उसी के सिमिलर बन जाएगा ये कुछ. सो ओवर कंस्ट्रक्शन relies on the fact that whenever x not equal to xi, lg इक्वल टू 0. यानी कि राइट हैंड साइड में डेल्टा फंक्शन है, ये सिर्फ xi पे आएगा. अदरवाइज क्या होगा, इस साइड में भी इक्वेशन क्या होगी, lg इक्वल टू 0. इस साइड में भी इक्वेशन क्या होगी, lg इक्वल टू 0. तो इस साइड को हम क्या कहेंगे, x लेस देन xi, और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो दैट विल बी बिगर देन xi. यानी कि सो इन बोथ केसेस कौन से, x लेस देन xi and x greater than xi, we have homogeneous equation. So let y1 y2 जो भी इक्वेशन होगा होमोजीनियस, सो उसके सेकंड ऑर्डर है, दो सोल्यूशन ले लो. लेट y1 y2 आर ए बेसिस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जो भी सोल्यूशन होंगे इनके मल्टीपल होंगे. सो y1 y2 आर बेसिस फंक्शन, आर बेसिस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ homogeneous problem ly equal to 0 on AB. We define these two functions. So we define this basis by taking that is requirement. So by requiring that, देखो बाउंड्री कंडीशन जो आपकी बाउंड्री थी ए थी, ये ए है ये बी है, तो ए पे y 0 है, ठीक है. हमने पीछे ऊपर टॉप पे लिखा ना, वी आल्सो नोट दैट y at a and y at b solution is 0. तो हम क्या करते हैं, हम y1 y2 ऐसे ले रहे हैं हम कि एक तो a पे वैनिश हो और दूसरा b पे वैनिश हो. सो वी डिफाइन द बेसिस बाय रिक्वायरिंग दैट y1 at a equal to 0 but whereas y2 at b equal to 0. आप उल्टा भी ले सकते हो, यानी कि एक सोल्यूशन इस पॉइंट पे वैनिश हो रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे वैनिश हो रहा है. अब बाउंड्री सेटिस्फाई तो करेगा ही, सोल्यूशन तो 0 बनेगा ही यहाँ पे. So we define the basis by requiring that, so that is each of जो भी आपके y1 y2 हैं, so they obeys one of the
one of the homogeneous boundary conditions. So now I'm taking left hand side. So on left hand side, so on A2 अगजाई पे discontinuity है open. So on A अगजाई the Green's function Green function satisfy equation LG equal to 0 and GA अगजाई equal to 0. ठीक है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन का बेस क्या है? जो जी ए पे वैनिश हो और जी उधर राइट हैंड साइड पे भी बी पे भी वैनिश हो, बट एनी होमोजीनियस solution of Ly equal to 0 satisfying the condition Ya equal to 0 must be proportional अब अपने y1 बेसिस लिया है ना, तो जो भी सॉल्यूशन होगा, अगर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो y1 के प्रोपोर्शनल होगा. So with a proportionality constant independent from x, that is जो सॉल्यूशन होगा जी एक्स जाई दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू y1, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट के अंदर जाई होगा बट x नहीं होगा इन लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि जो राइट हैंड साइड है अगजाई टू बी, द ग्रीन्स फंक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाया मैंने, मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू y2x and therefore we can take gxj equal to some constant b not depending on x for x belongs to xi b. So we need to put a label. So नंबर कहाँ तक पहुंचे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 3. So this is 4. Then say this is 5. This is 6. So here coefficients, so any solution will be, क्योंकि आपने y1 y2 बेसिस फंक्शन लिए हैं तो सॉल्यूशन उसके प्रोपोर्शनल होगा, but you may have some constant a and b not depending on x. So this construction gives अब ये लेफ्ट और राइट दोनों जगह बता देगा, बट किसको स्किप कर रहा है? जाई पे स्किप कर रहा है. So this construction gives us families of Green's function for x belongs to a to b माइनस एक उसमें से सिंगलटन जाई को निकाल दो.
तो अगर आपको, अब अगला एम है कि फाइंड ए एंड बी। अगर हमें ए और बी मिल गए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हमने सॉल्यूशन ऐसे लिखना है कि इस पॉइंट पे ज्वाइन भी हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट हम स्किप कर रहे हैं, बीच में एक जाई इधर लिखा है आपने, इधर लिखा है, और इस पॉइंट पे बाय पुटिंग सम कंटिन्यूटी क्राइटेरिया यू नीड टू ज्वाइन दी सॉल्यूशन एट दिस पॉइंट, कि एक चाहे यहाँ पे जा रहा है, दूसरा यहाँ पे, बट इनको आपने ज्वाइन करना है इस पॉइंट पे, जाई पे। सो नाउ वी need to join these two solutions at x equal to xi. So now integrate तो इंटीग्रेशन से पहले we put continuity criteria, uh, we assume that gx xi must be continuous throughout the interval ab, and in particular at x equal to xi as well. So we integrate equation 2 on a small neighborhood of, देखिए एक पॉइंट एक जाई है, इस पे दिक्कत है, तो इसके अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड ले लो लेफ्ट राइट में, उसमें हम जो गिवन इक्वेशन थी 2 उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज एल जी इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस एच आई, स्मॉल नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू एच आई। सो वी गेट स्मॉल नेबरहुड को लिखोगे लेफ्ट राइट में जाना है, सो एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। इक्वेशन को ऑपरेटर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एल इज पी एक्स। वैसे तो डी टू वाई बाई डी एक्स के था, तो यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है जी, वैसे वेरिएबल तो एक है, सिंबॉलिक है जी। यू कैन से जी इज ए फंक्शन ऑफ टू थिंग्स एक्स एंड जाई, सो आई एम रिप्लेसिंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव। सो डेल्टा टू जी इंटीग्रल करना है डी एक्स, सेकेंड टर्म क्यू डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो अलग अलग डी एक्स को बाद में लगा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और लास्ट टर्म थी पी क्यू आर, वाई था, वाई की जगह जी हम एल जी लिख रहे हैं ना, डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स माइनस एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड का इंटीग्रल 1 है, डेल्टा को टोटल पे इंटीग्रल करोगे। So as we know that g is continuous and all the coefficients p q r, they are also continuous in a interval a to b, so all the three coefficients they are bounded on that closed interval. तो अगर आप, मतलब ये बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल इंटरवल है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल, तो जो टर्म के कंट्रीब्यूशन है अगर आप अलग अलग इंटीग्रल करोगे,
ये बाउंडेड टर्म है, तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये? हाँ, बाउंडेड फंक्शन है। इनफैक्ट अगर आप सेम लिमिट में करोगे, अगर आप इफ यू फिट फैलन गोज टू जीरो, तो लिमिट लगभग सेम बन जाएंगी। तो इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ? सर अगर एप्सिलॉन 0 हो रहा है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी ना? हाँ, जीरो हो जाएगी, तो मतलब कंट्रीब्यूट ये जीरो करेगा, ये वाली टर्म। यस सर। और मिडल वाली टर्म जी इज कंटिन्यूस, तो आप कह सकते हो डेरिवेटिव बाउंडेड होगा एक क्लोज इंटरवल पे, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये भी बाउंडेड होगा सेकंड। फर्स्ट के बारे में हम श्योर नहीं है, फर्स्ट को हम अलग से इंटीग्रल कर लेंगे। So now we apply continuity conditions on every in on each of three integral on left hand side. So as g is continuous and p q r are also continuous and hence bounded, also since g is continuous, so the term qx, जो पार्शियल डेरिवेटिव ये है gx, so g is continuous, so this is bounded, therefore contribution of second and third term on left hand side is जीरो, क्योंकि जो इंटीग्रल का जो रीजन होगा दैट विल बी श्रिंक टू ऑलमोस्ट जीरो। सो इफ यू हैव बाउंडेड थिंग्स दैट इंटीग्रल विल बी जीरो। और अगर फर्स्ट टर्म पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, फर्स्ट टर्म पे यू परफॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो फाइनली फर्स्ट टर्म जो है ये थी लिमिट एप्सिलॉन गोज टू जीरो, एप्सिलॉन सॉरी जाई माइनस एप्सिलॉन, जाई प्लस एप्सिलॉन, ये टर्म थी। इस पे करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं आंसर लिख रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव हटेगा, उसकी वैल्यू आप कंप्यूट करोगे, अपर लिमिट फिट करोगे तो ये जाएगी पॉजिटिव साइड में, माइनस ये लेफ्ट साइड में, और ये फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन है और इक्वल टू है इसके 1। सो देयरफॉर अगर हम समराइज करें तो जी पे कंडीशन बनी है, जी कंटिन्यूस है, यानी कि x इक्वल टू जाई लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड में, x इक्वल टू जाई प्लस, सो दिस इज कंटिन्यूटी कंडीशन। कंटिन्यूटी दूसरी कंडीशन जो 1 बना है, तो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, पहले लेफ्ट वाली चीज लिख रहा हूं जाई माइनस, और फिर राइट वाला लिख रहा हूं
इक्वल टू पी को उधर ले जाओ, साइन भी उल्टा लिखा ना, लेफ्ट में माइनस आ जाएगा, सो माइनस 1 by पी xi. This condition is known as jump in derivative. जंप इन डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट में डेरिवेटिव कितना है, राइट में डेरिवेटिव कितना है, उनका डिफरेंस जो होगा दैट इज -1 by पी xi. अब इन दोनों को सॉल्व करके, अच्छा अब जो हमने पीछे लिखा है 5 और 6 में, फ्रॉम 5 and 6, 5 and 6, 5 लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन लिखा था आपने और ये राइट साइड में, तो ये दो वैल्यूज 5 और 6 में फिट कर दो. तो लेफ्ट में क्या होगा, पहली कंडीशन ए xi, लेफ्ट में आपका लेफ्ट इक्वल टू राइट, ठीक है, कंटिन्यूटी. दूसरा डेरिवेटिव करो, पहले उनका डेरिवेटिव करोगे, ए तो फिक्स है, y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 डैश माइनस बी राइट हैंड साइड में बी xi, y2 का डेरिवेटिव और इक्वल टू -1 by पी xi. तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास ए और बी में. क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना है, फाइंड ए एंड बी फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. सो सॉल्विंग, ए का जो वैल्यू मिलेगा, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, ए का वैल्यू मिलेगा y2 xi अपॉन p at xi Wronskian at xi, और जो b का वैल्यू मिलेगा b at xi इक्वल टू y1 at xi डिवीजन p at xi Wronskian at xi. तो w क्या है यहाँ पे, Wronskian है, सो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, सो Wronskian ऑफ y1 एंड y2. तो ए और बी मिल गए, तो फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल गया. सो फाइनली वी कंक्लूड, so finally we conclude that we have found a solution. We have found solution gxi of Lg equal to delta of x minus xi with conditions जी ए पे और जी बी पे 0 हो, और जो वैल्यू है एंड वैल्यू इज गिवन बाय, तो इकट्ठा करके लिख रहा हूं, दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, जी एक्स एक्स y1. अब देखो ए के अंदर ऊपर y2 आ रहा है ना, बी के अंदर y1 आ रहा है, ठीक है, तो y1 यानी कि 5 और 6 में दोबारा फिट कर दो, सो y2 xi लेफ्ट साइड में ये है, p at xi Wronskian at xi, जो आपका x है वो लेफ्ट साइड में है, और जो सेकंड है y2x, तो आपने ये मेन फार्मूला ध्यान रखना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, Wronskian at xi दैट इज इन राइट हैंड साइड. xi से जो x है वो राइट साइड में है अप टू b. सो फाइनली सॉल्यूशन ऑफ, अब हमने शुरू में क्लेम किया था जो सॉल्यूशन है, हमने 4 में शो भी किया था. सो जो नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ ly इक्वल टू f इज, वो क्या था, y इक्वल टू इसका इंटीग्रल ग्रीन फंक्शन का, f at xi dy. और अगर पूरा लिखना चाहो दोबारा से तो आप ये लिख सकते हो,
a to x तक जाओगे पहले, ठीक है, y1 p xi, वैल्यू ऊपर वाला डाल दो, f of xi d xi, और x से लेके b तक y2 at xi, डिवीजन p at xi, Wronskian at xi, f at xi, d xi. So this is my solution of non-homogeneous problem. So to summarize, you need to take care of these formulas. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो नॉन होमोजेनियस का सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा ग्रीन्स फंक्शन की टर्म में, जी एक्स जाई, और जी कैसे निकालने हैं, जी इस फार्मूले से, ठीक है, जाई के लेफ्ट में और जाई के राइट में। सो इनडायरेक्टली बाय सॉल्विंग ए होमोजेनियस प्रॉब्लम एक्सेप्ट एट अक्जाई, इस पॉइंट को अगर आप छोड़ दो अक्जाई को, अक्जाई, सो इन लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड यू हैव ए होमोजेनियस प्रॉब्लम. So in fact, by constructing Green's function, you can solve non-homogeneous equation. And construction of these G, that is the important point. Construction of these G does not depend on F. तो आप कोई भी F लगा के आप solve कर सकते हो problem. So in next lecture we will quickly revisit and we will solve the problem. जब problem आप solve करेंगे तो उतना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा अनयूजुअल था, थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। ओके, सो वी विल क्विकली रिविजिट इन नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके, चलो पढ़ना, इन नेक्स्ट क्लास ब्रिंग योर क्वेरीज। ओके सर। थोड़ी सी नई चीज है, न्यू है, डिफरेंट है, नॉट डिफिकल्ट।